very good morning to all. So what we will do today? Today we will do lesson number 2 of EVS. The last class we have completed lesson number 1 of EVS. Last class में हम lesson number 1 EVS का finish किया था. आज हम क्या करेंगे? आज हम EVS का lesson number 2 start करेंगे. क्या करेंगे आज हम? Lesson number 2 start करेंगे. What is the name of the lesson? Lesson name is our body. What is the name of the lesson? Our body, internal body parts. What is the name of the lesson? Lesson name is internal body parts. What is the meaning of internal body parts? Internal body part means आज हम लोग body organs के बारे में पढ़ेंगे जो body के कहाँ present होते हैं, inner side में present होते हैं. Body के अंदर जो organ present है जिनको हम normally देख नहीं सकते या touch नहीं कर सकते, उन body organs के बारे में आज हम पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे आज हम? Internal body organs. Internal body organs क्या होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So what is internal body organ? Organs which are present on the inner part of the body is called internal body organs. वो organ जो body के inner part में रहते हैं, inner part में protected रहते हैं, क्योंकि ये organ क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक या बहुत डेलिकेट होते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है, इसलिए ये बॉडी कहाँ होते हैं? inner side में होते हैं. इसलिए इन organs को हम क्या बोलते हैं? internal body organs बोलते हैं. Those organs which are present on the inner side of the body is called internal body organ. They need to be protected. इनको जरूरत होती है प्रोटेक्शन की, इसलिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी बॉडी के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं. So what are internal organs? Internal organs are those organs which are present on the inner part of the body are called internal body organ. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन. एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कौन से थे? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन वो ऑर्गन्स थे जो बॉडी के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर साइड में होते हैं. वो क्या कहलाते थे? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन. सेम विद इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स आर दोस ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉडी. एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन आउटर साइड ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉडी. तो फर्स्ट लेटर इन का मतलब ही होता है अंदर, मतलब बॉडी के अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरनल बॉडी ऑर्गन. ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल बॉडी ऑर्गन. सो क्योंकि बॉडी के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं इसलिए नॉर्मली ये विजिबल नहीं होते, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इन्हें हम फील कर सकते और ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं क्योंकि बॉडी के इनर साइड में होते हैं. सो सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स. अब देखिए क्योंकि ब्रेन क्या है हमारी बॉडी के इनर साइड में, इसे हम यूजुअली देख नहीं सकते ना टच कर सकते हैं, इसलिए क्या है एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन है. हार्ट, लंग्स. सो दीज एंड सम मोर दैट वी विल लर्न इन coming classes. So these organs are present on the inner side of the body. So they are called internal body organs. Let's revise it again. What are internal body organs? See, our body is divided into two types. हमारी body क्या है? Two types of organs में divided. कितने types में? Two types में. हमने last class में पढ़ा था our body is divided into different parts. हमारी body different parts में divided है. इन parts को हम क्या बोलते हैं? These parts are called organ. Firstly, our body is divided into different parts and these parts are called organs. Different parts होते हैं हमारी body में, हम क्या बोलते हैं? Organs. And further, these organs are divided into two parts. फिर ये different parts of body को क्या बोलेंगे हम? Organ. और ये organs कितने parts में divided होते हैं? Two parts में. The two parts is first external body organ and the other is internal body organ. पहला part कौन सा होगा? External body organ and the other part is internal body organ. External body organ कौन से organ हो जाएंगे? External body organ means those organs which are present on the outer side of the body like eyes, nose, ears, tongue, teeth. ये क्या होगा हमारे external body organ जो हमने last class में पढ़ा था. And the other is internal body organ. Internal body organ यानी वो organ, those organ which are present on the inner side of the body. Body के inner side में जो organ present होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? Internal body organ. So our body has different parts and these parts is called organs. And organs are divided into two types, external body organ and internal body organ. In the last class we have completed the external body organ lesson number 1 and today we are doing lesson number 2 internal body organ. Internal body organs are those organs
ब्रेन, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है और किस तरह से फंक्शन करता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी ऑर्गन ब्रेन के बारे में। पहले हमने डेप में पूरा लर्न कर लिया कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन क्या होते हैं। इंटरनल बॉडी ऑर्गन क्या होते हैं? इंटरनल बॉडी ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन जो बॉडी के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब अपनी बुक ओपन करेंगे, आपकी बुक में पेज नंबर 12 आप पेज नंबर 12 ओपन करेंगे। पेज नंबर 12 में क्या है? आपका लेसन नंबर 2 इंटरनल बॉडी पार्ट, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में आज पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? ब्रेन के बारे में। ये क्या है? हमारा ब्रेन है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अवर ब्रेन। दिस इज हाउ अवर ब्रेन्स लुक्स लाइक। क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी के इनर पार्ट में है, इसलिए हम इसको नॉर्मली देख नहीं सकते, ना ही हम इसे टच कर सकते हैं। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अवर ब्रेन। दिस इज हाउ आवर ब्रेन्स लुक लाइक। So today what we will learn? Today we will learn how our brain works, what is its function in our body, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में, इसके functions क्या हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। Firstly, see this is the picture of our brain. हमारा brain इस तरह से दिखाई देता है। Now we will learn what our brain do in our body. See, brain is located इनसाइड द स्कल। क्या दिया हुआ है इसमें? इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ लोकेटेड होता है? कहाँ पे होता है? वो स्कल के अंदर होता है। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर होता है। अब स्कल के अंदर क्या होता है? स्कल का मतलब स्कल जो होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट डेलिकेट होता है, और थोड़ी सी भी चीज में लग जाए तो ये खराब हो सकता है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसमें रखा जाता है? स्कल के अंदर। जो हमारे ब्रेन के जो आउटर शेल होगा वो किसमें कवर रहता है? स्कल के अंदर। क्योंकि किसी भी तरह की इंजरी से हमारा ब्रेन खराब हो सकता है, उसमें इंजरी हो सकती है। तो किसी भी तरह की आउटर इंजरी से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन किसके अंदर रहता है? स्कल के अंदर। मेन वर्क विच स्कल डू इन अवर बॉडी इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो कौन करेगा? स्कल करेगा। सो द मेन वर्क विच स्कल डू इन अवर बॉडी इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो ब्रेन कहाँ लोकेटेड होता है? अवर ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। कहाँ लोकेटेड होगा हमारा ब्रेन? ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल के अंदर। इनसाइड मीन्स अंदर। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो मेन वर्क विच स्कल डू इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एनी इंजरी। किसी भी तरह की इंजरी से हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो कौन करेगा? स्कल करेगा। देन इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी मीन्स कंट्रोल मतलब किस चीज में कंट्रोल करना? सेंटर यानी बीच। जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से जो कंट्रोल करने का काम है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का, वो कौन करता है? ब्रेन करता है। जो हमारी बॉडी का ओवरऑल जो कंट्रोल का जो काम होता है वो कौन करेगा? हमारा ब्रेन करेगा। सो इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी, जो भी काम हम अपनी बॉडी में कर रहे हैं, लाइक सीइंग यानी देखना, हियरिंग यानी सुनना, लर्निंग यानी याद करना, थिंकिंग यानी सोचना, वॉकिंग यानी चलना, ये सब चीजें किससे कंट्रोल होती है? हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है। तो जो मेन काम हमारी बॉडी में ब्रेन करता है वो काम होता है हमारी बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटीज। हम जो भी काम कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। आप किस चीज को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये कौन कंट्रोल करेगा? हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा। आपको सुन रहे हैं, सुनना, लर्न करना, किसी चीज को याद रखना, किसी चीज के बारे में सोचना, वॉकिंग, इवन चलना, जो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में? वो सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। सो क्या है ब्रेन? ब्रेन एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। इंटरनल बॉडी ऑर्गन इसलिए है ये क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी बॉडी के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन बोलते हैं। अब हमारा ब्रेन लोकेटेड कहाँ होता है? कहाँ होता है हमारा ब्रेन? हमारा ब्रेन स्कल के अंदर होता है। स्कल क्या होता है? ये एक बोन का स्ट्रक्चर होता है जिससे जो क्या काम करता है? हमारे ब्रेन को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। सो वेयर एवर ब्रेन लोकेटेड? ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। कहाँ लोकेटेड होगा? ये स्कल के अंदर लोकेटेड होगा। जो मेन काम है ब्रेन का बॉडी में, ये क्या है? पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। हमारी बॉडी को पूरी तरह से जो कंट्रोल करने का काम है वो काम कौन करेगा हमारे लिए? हमारा ब्रेन करता है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम कौन कंट्रोल करता है? हमारा
ब्रेन करता है। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी करती है, लाइक सीइंग देखना, हियरिंग यानी सुनना, लर्निंग, थिंकिंग, वॉकिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. सो brain is an internal body organ. It is located inside the skull. It is the control center of our body which control all the activities of our body. The next organ that we will learn today is our heart. दूसरा इंटरनल ऑर्गन हम कौन सा पढ़ेंगे आज? दूसरा इंटरनल ऑर्गन आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में. सो दिस इज हाउ अवर हार्ट्स लुक लाइक. हमारा हार्ट किस तरह का दिखाई देता है? इस तरह से हमारा हार्ट दिखाई देता है. दिस इज हाउ अवर हार्ट लुक्स लाइक. नाउ वी विल लर्न द फंक्शंस ऑफ अवर हार्ट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अवर हार्ट? सी, हार्ट इज लोकेटेड ऑन द चेस्ट कैविटी. कहाँ लोकेटेड होता है हमारा हार्ट? हमारा हार्ट, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए ये भी कहाँ रहता है? हमारी बॉडी के इनर साइड में रहता है. और ये कहाँ लोकेटेड होता है? चेस्ट कैविटी, हमारे चेस्ट की कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है. इट हैज 4 चैम्बर्स. कितने चैम्बर्स होते हैं इसमें? 4 चैम्बर्स होते हैं. द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और क्या काम करेगा ये हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड को जो सर्कुलेट करने का जो काम है वो कौन करेगा? वो हार्ट. सो हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? अवर हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. हमारे चेस्ट में हमारा हार्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, स्लाइटली राइट साइड में ये लोकेटेड होता है. इट हैज 4 चैम्बर्स. इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. द मेन वर्क विच हार्ट डू इन अवर बॉडी इज टू पंप द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड को जो पंप यानी पहुंचाने का जो काम है वो कौन करेगा? पंप करने का, प्योर करने का ब्लड को, वो काम करेगा हमारा हार्ट. सो आज हमने पढ़ा है 2 इंटरनल बॉडी ऑर्गन. फर्स्ट इज ब्रेन एंड द अदर वन इज हार्ट. ब्रेन, it is located inside the skull. It is the control center of our body and it control all the activities of our body. And the second one is heart. Heart, it is located in the chest cavity. It has 4 chambers and the main work which heart do in our body is to pump the blood to all the parts of the body. In the next class, what we will do? In the next class, we will do the rest of the internal body organs.